वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है. So, good morning, everybody. In the last class, we have discussed about the welfare schemes of Telangana government. The weightage of that answer was for 10 marks. Today, we'll start the SAQs and 5-mark questions. Okay. So, the first question, which is very important, we'll talk about the types of unemployment over here today. Okay. So, let us actually know what unemployment is. Unemployment हम बोलते किसको? Unemployment का मतलब क्या है? इसको हम समझेंगे पहले. Okay. Unemployment का मतलब क्या होता है? What do you mean by unemployment actually? See, unemployment is nothing but a situation. It is a kind of situation where a person who has the ability to do the work and capacity to do the work and skill to do the work, but still based on those skills he is not able to find the job, then this situation is called as unemployment. Okay, I repeat this. An individual who is in a position to do the work and has the capacity to do the work and has the ability to do the work and skill to perform some activity, but still he is not in a position to find a particular job, then this situation is called as unemployment. Okay, समझ में आ गई बात? ठीक है. अब अनएम्प्लॉयमेंट के माने तो हम समझ गए. we all are aware about unemployment, right? Unemployment is the meaning we have discussed right now, but today we'll talk about the types of unemployment. So what do you mean by types of unemployment? यानी unemployment कितनी तरह का है, हम इसके बारे में बात करेंगे आज. ओके. So look at here, everybody. So giving your full concentration, let us move to the today's class. See, the first one is structural unemployment. So what do I mean by structural unemployment? Yes, structural unemployment is nothing but due to the changes in the structure of economy, if the unemployment moves up or comes down. Okay, the changes into the economy due to the economy के अंदर जो change आया, उस economy के cycle के अंदर change आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या तो बढ़ा या घटा, तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. या यूं मान के चलो आप कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के चेंज के इम्पैक्ट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, then we call it as structural unemployment. Change due to change in the structure of economy resulting in increase in unemployment, then we call it as structural unemployment. Okay, moving to the next unemployment. Next one is disguised unemployment. So what do you mean by disguised unemployment? Disguised unemployment is nothing but one person job. Let us assume एक काम 5 लोग करने का है, वही काम अगर 10 लोग कर रहे हैं, तो ये जो एडिशनल 5 लोग कर रहे हैं, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो 0 हो गई. 5 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यानी पीपल वर्किंग इन ए पर्टिकुलर जॉब more than the actual requirement, then we call it as disguised unemployment. Do you remember that? Disguised unemployment. The first one was structural unemployment. Second one is
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि जितने लोगों की जरूरत है किसी जॉब के अंदर, उस जॉब को अगर उस पर्टिकुलर लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो हम उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, मूविंग टू द थर्ड वन एग्जाम्पल, ये थर्ड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वी सी लॉट ऑफ पीपल दैट when there is a season of some particular thing, then we can say then they are employed with some kind of employment. Okay, but when there is no season, when the season is leaving that particular person, or when the season is leaving off, then actually that particular person is left with no job in the hand, then we call it as seasonal unemployment. यानी jobs जो है seasons के हिसाब से create हो रहे हैं. Okay, okay, अगर वो सीजन रहा तब जॉब्स अवेलेबल है. if the season has been left, then those jobs are gone, right? That kind of unemployment we call it as seasonal unemployment. Okay, next one है frictional unemployment. frictional unemployment is nothing but, देखिए एक आदमी एक जॉब में लगा हुआ है, if person is employed with some kind of organization, right? Okay, now let us understand this with one example. Now if he is moving to some another company or some another organization, what actually happens if he is leaving right now? Okay, the time period between leaving the one job to another job, okay, shifting from one job to another job, the time period between the two jobs, whatever the person is moving, that time period he remains unemployed, right? That particular kind of unemployment is called as frictional unemployment. What do you say? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये है एक जॉब से दूसरे जॉब को मूव होने में जो टाइम पीरियड लग रहा, उस टाइम पीरियड के दरमियान दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता कि अगर एक आदमी के स्किल्स को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन स्किल्स are not being utilized fully, or if his skills and his what you say knowledge has been only used at partial basis, then we call it as under unemployment. यानी उस पर्टिकुलर पर्सन की स्किल को अंडर यूटिलाइज किया जा रहा और उसके नॉलेज को कम यूटिलाइज किया जा रहा, तो हम उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, चलिए, नाउ द लास्ट वन इज technological unemployment. So what do you mean by technological unemployment? See, let us assume with one example. Let us understand this with one example. Okay, if some company who are producing something, okay, if that particular company of that particular manufacturing unit, if they are using some kind of technology where they are using some labor intensive technologies, okay, यानी लेबर से काम करा के वो लोग कोई प्रोडक्शन कर रहा है. अब अगर सेम काम लेबरर्स को हटा दे कि कोई मशीन ला लिए या कोई टेक्नोलॉजी ला लिए, तो अब लेबरर्स को देने का, लेबरर्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को. तो अब क्या करते हैं, अब क्या होता है कि भाई those laborers will lose their job, right? Okay, now the unemployment is rising due to the change in technology. Okay, change in technology की वजह से if unemployment is occurring, then we call it as technological unemployment. Okay, technological unemployment यानी unemployment पे जो impact पड़ रहा टेक्नोलॉजी के चेंज आने की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, दिस क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स ऑफ वेटेज. ओके, विल वंस अगेन रिवाइज ऑल दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में 6 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है. पहला है स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में बोला कि भाई इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर इकोनॉमी में आए तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद दूसरा वाला है डिसगाइज. डिसगाइज का मतलब होता कि पर्टिकुलर जॉब में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं उसमें, then we call it as disguised unemployment. And the third one is seasonal. Seasonal unemployment, we all are aware that due to the season, if somebody is getting unemployment, okay, when there is season, he's having particular job. When there is off season, that particular person is not having the job, then we call it as seasonal unemployment. And the next one is frictional. Frictional का मतलब होता है कि भाई एक आदमी एक जॉब से दूसरे जॉब को मूव होने के दरमियान जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में इफ ही इज अनएम्प्लॉयड, देन वी कॉल इट एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद अंडर. अंडर का मतलब होता है कि भाई इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन
his skills are not been fully utilized or not utilized to the maximum capacity, then we call it as underemployment. Last one is technology. We have done this. Okay. So we are done with this topic. We're moving to the next topic. If somebody is having any doubt, can ask me the question. Okay. Participants. Okay. Okay. One more topic today we will do is Niti Aayog. Okay. Okay, sir. So if anybody is having any doubt, can ask me. Okay. You Okay, can sir. unmute yourself and you can Okay, ask sir. any question. In the last answer में किसी को कुछ doubt है तो पूछ सकते हो. Okay. Okay, sir. Types of unemployment में किसी को कुछ doubt है? नहीं है सर. चलो ठीक है. नो सर. समझ में आ गया सबको? यस सर. Yes, sir. Understand, sir. Okay. We'll move to the next topic today. Okay. Let me have some water. Wait for 2 minutes. Then we'll continue. Okay, sir. Unemployment के आंसर में किसी को कुछ डाउट है बाबा? Is anyone having any doubt can ask me or raise your question or unmute yourself and ask me some question. Yes. So somebody have texted over here that so clearly you can unmute yourself and ask me a question, right? Unemployment. Voice. Repeat again, sir. Yes, everybody is able to hear. Okay. So is anyone having any doubt in the last answer just now we have discussed? जी कौन सा वाला? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट राइट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस 5 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है. कितने? 5 तरह के. फॉर 5 मार्क के वेटेज के लिए बोल रहा हूँ मैं. तो पहला वाला था स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में क्या था कि भाई इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट अकर हो रहा स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से. ओके. ड्यू टू द चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी then we call it as structural unemployment. Okay. Second one was disguised. Disguised का मतलब होता एक पर्टिकुलर जॉब में
जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ओके, people doing that particular job more than the actual requirement. Okay, then we call it as disguised unemployment. Okay, the third one was seasonal. We all are aware about the season. सीजन के हिसाब से लोगों को जॉब मिल रहा. ओके, ऑफ सीजन में जॉबलेसनेस रहे लोग, तो हम उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, उसके बाद एक है कि भाई आपका क्या था, सीजनल के बाद फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरे जॉब को शिफ्ट करने के दरमियान जो पीरियड ऑफ टाइम अनएम्प्लॉयड रहता, हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, उसके बाद एक था अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर का मतलब होता कि एक आदमी जॉब पे है, ऑलरेडी ही इज बीन एम्प्लॉयड समवेयर, बट स्टिल his skills are not being utilized fully, then we call it as under unemployment. Okay, the last one was technology. टेक्नोलॉजी के रिप्लेसमेंट की वजह से अगर लोग जॉब लूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. गॉट इट एवरीबडी नाउ? if anyone is having any doubt can ask. Okay, then moving to the next topic, this is Niti Ayog. Next one is Niti Ayog. See Baba, this is a definite question for 5 mark. In each and every paper you will easily find this question. Very important question. Okay, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आंसर. देखिए, व्हाट डज नीति स्टैंड्स फॉर? नीति का मतलब क्या होता? कैन एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स आंसर मी? यस, yes, can anyone from the participants, what do you mean by niti actually? Any reply? Okay, look at here. नीति का मतलब होता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. देखिए, इसका एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं. लेट मी गिव सम स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर आयोग. देखिए, ये अर्लियर हमारे पास 1950s के बाद वी वर हैविंग द प्लानिंग पीरियड. ओके, प्लानिंग कमीशन था हमारे पास एक. हर 5 साल के लिए एक टारगेट रखते थे हम, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वी यूज टू वर्क हार्ड. ओके, बट लेटर ऑन in 2012 2014 what actually happened, the government changed. Okay, since then that planning commission was scrapped. उस प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया गया. उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक आयोग लाया गया जिसका नाम है नीति आयोग. समझ में आ रही बात एवरीबॉडी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, sir. okay. See, that planning commission was replaced with this Niti Ayog. Okay, Niti Ayog stands for National Institute for Transforming India. Okay, 1 जनवरी 2015 उसको एस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, 1 जनवरी 2015 it came into the existence. Since then still it is been in the okay working condition. Okay, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाने का मेन मकसद ये था, गवर्नमेंट को एक तो स्ट्रैटेजी देना, क्रिटिकल थिंकिंग देना, और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जितने भी हर्डल्स आ रहे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे, उसको रिमूव करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था. समझ में आ रही बात? ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ही ये है कि भाई टू गिव द स्ट्रैटेजिकल एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेवलपमेंटल इनपुट्स टू द गवर्नमेंट. इस आयोग का काम ये था. समझ में आ रही बात? तो ये इस आयोग के जो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद एक पूरी बॉडी है हु रेगुलेट्स दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये है कि भाई डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग देना, इनपुट्स देना, सेंटर टू स्टेट
ओके, सेंटर से लेके स्टेट तक, ठीक है। इस आयोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई सेंटर और स्टेट ये दोनों को जो है एक डेवलपमेंटल इनपुट देना, क्रिटिकल थिंकिंग देना और स्ट्रैटेजी बनाना, ओके, इम्प्रोवाइज करने के लिए डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, टू स्पीड अप दैट, टू इम्प्रोवाइज दैट, दिस आयोग केम इनटू द एग्जिस्टेंस। Okay, so I'll read out the functions and some objectives of this particular ayog, then we'll discuss regarding this. Okay, तो पहला point है to encourage good governance with the help of technology। देखो, गवर्नमेंट को encourage करना टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के को सामने लाकर और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिप्लेस करके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना इस आयोग का काम है। ओके, तो फर्स्ट वन वाज इज दैट to include the non-resident Indian community in the development process। देखिए, those residents those are not living in India but still they are out of India, to even include them, उनको भी साथ में लेके डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है हमारा उसको स्पीड अप करने के लिए नॉन रेसिडेंट इंडियंस को भी इस आयोग के अंदर लाया गया। ओके, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन आवर पर्टिकुलर कंट्री। ओके, द थर्ड वन इज टू बेनिफिट फ्रॉम साइंटिफिक, एंटरप्रेन्योर एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन कैपिटल को भी इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, एंटरप्रेन्योरियल फॉर्म में जो है लाना और इससे एनहांस करना, डेवलपमेंट को एनहांस करना। इसलिए इस आयोग का एक ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्रोवाइज ऑल दीज एरियाज, यानी ये जितने भी स्किल्स यहाँ पे बता रहे हैं, साइंटिफिक, एंटरप्रेन्योरियल एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता? यस, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? Human capital का मतलब, see, people those who all are working for some organizations, okay, but they are nothing but the capital to that particular organization, right? To improvise them and to bring them into the active development process, okay, to bring them and to include them and to enhance them, okay, in the developmental process. Understood everyone? Okay, the next one is functions। हम functions के बारे में बात करेंगे। functions क्या है कि भाई इस आयोग के अंदर, इस आयोग के जो functions हैं, क्या एक्चुअली इनको जिम्मेदारी दी गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? यस, यस पार्टिसिपेंट्स, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? नो सर। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा बेटा सबको? यस, यस सर, अंडरस्टैंड। चलिए, ओके, विल मूव फॉरवर्ड। इसके फंक्शन जो है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, पेज नंबर 56 पे ये आंसर है। इफ यू ऑल आर हैविंग द बुक विथ यू, प्लीज लुक एट देयर। द पहला फंक्शन जो है, इट डेवलप्स द विजन एंड सिनेरियो प्लान्स फॉर द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यानी हर स्टेट को एक विजन देना, हर स्टेट को एक पैरेलल, क्या बोलते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में मूव होना है, एक स्ट्रैटेजी बनाना इस आयोग का काम है। समझ में आ रही बात? पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड वन इज इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी का अपग्रेड, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। वी ऑल आर अवेयर दैट even now and then, if you don't upgrade our technology, we will lack the development process। okay, डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर अगर टेक्नोलॉजी सही नहीं है या अपग्रेडेड नहीं है तो होता क्या, डेवलपमेंट जो है पीछे जाता। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर हम कंपेयर करें दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से, उनके पास जब कभी भी कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन आता, they definitely they try to adopt that, okay, whereas developing countries, they think there are a lot of प्रॉब्लम्स विद देम। ओके, ठीक है। तो अब एक चीज ये है कि भाई इस आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बाबा? ये इस आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए, नेक्स्ट वन है इट रिजॉल्व्स इंटरस्टेट एंड इंटरसेक्टरल डिस्प्यूट्स। ओके, ये जो डिस्प्यूट्स आते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, तो ये इस आयोग का काम है कि भाई इसको रिजॉल्व करना। जैसा जीएसटी है, जीएसटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे पहले भी। अर्लियर देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज व्हाइल collecting the GST and distributing the GST. Okay, this Ayog came into the existence. After that only there was the disputes were resolved using this Ayog. Okay, नीति आयोग के जरिए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है it assists India to transform into cooperative and competitive federalism. It also provides national agenda to Prime Minister, Chief Ministers for the development along with priorities and strategies. As I have already said that
इस आयोग का काम ही है स्ट्रैटेजी बनाना, क्रिटिकल इनपुट्स देना, डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर कैसा फॉरवर्ड मूव होना है, उसके लिए एक विजन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को भी ये आयोग देता। समझ में आ रही बात? और एक बात आपको ये भी बोल देता हूँ, इसकी जो बॉडी है, नीति आयोग की जो बॉडी है, इसके चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पूरे पूरे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो लोग भी इसके मेंबर्स हैं। ऑल दोस चीफ मिनिस्टर्स आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आयोग. Do remember this one. Every now and then you can see there are a lot of meetings held of Niti Aayog in different states. चलिए, next one is it acts as knowledge and innovation hub by gathering and spreading research and best practices. It acts as nodal agency for controlling. ये तो पॉइंट्स पूरे इसी के अंदर है ना, रिसर्च के जरिए से, प्रैक्टिस के जरिए से इस आयोग का काम है कि भाई फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। ओके, सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को कम करना और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना इस आयोग का काम है। ओके, इट सुपरवाइजेस द लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स देयर इन्फ्लुएंस। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। कोई भी पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या कोई भी पॉलिसी को हम क्या है उसके रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो प्लानिंग कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई वो लोग उसको चेक करते थे पहले, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिए किससे? नीति आयोग से। तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज होल एंड सोल रेस्टेड विद नीति आयोग। ओके, एनी लॉ, एनी पॉलिसी इज टू बी डिस्कस्ड, देन डेफिनेटली नीति आयोग कम्स इंटू द पिक्चर कि भाई ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है इसको लाना चाहिए, लाना नहीं लाना चाहिए। तो इस पॉलिसी को लाने पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पूरा डिस्कशन, एवरीथिंग लाइज विद नीति आयोग। अंडरस्टूड एवरीवन? एक चैनल भी है यूट्यूब पे नीति आयोग के तरफ से लोग चलाते हैं। ओके, उसमें डेली ये है कि भाई डेवलपमेंट के प्रोसेस में डेली वॉट एवर दे आर डूइंग, दे ट्राई टू अपलोड इन दैट। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, I'm done with this topic. If anybody is having any doubt, can ask me. Okay. Yes, participants, anybody is having any doubt in any of the topic? In any कोई टेक्स्ट आया क्या? किसी का कुछ टेक्स्ट है? Both the topics you all are clear, I guess. Okay. नीति आयोग and types of unemployment. ये परसों के जो मार्च में जो पेपर हुआ था आपका इकोनॉमिक्स का, मार्च अप्रैल में, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चंस थे मौजूद। तो probably these two questions will definitely come in your supplementary exam also. Do remember that. Okay. क्या बोल रहा? You ask from starting. Yes, I cannot teach again the full topic. If you have any doubt in any kind of noun over here, you can ask me. Okay, puri topic re-explain karna, it's not possible right now because I am short of time. I do have different classes also. Okay. So if you have any doubt, you can ask. कुछ और डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछिए। पूरी टॉपिक री-एक्सप्लेन करना, it is not possible, right?
एनी हैविंग डाउट, कुछ डाउट है क्या और पूछ ले। See again, how can I explain the full topic once again? If you have any, देखो बाबा टॉपिक में कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछो डायरेक्टली, बट पूरी टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना अभी मैं पूरी सेशन ले लेने के बाद। जी ठीक है, मैं दो टॉपिक पढ़ा, देखो आज मुश्तबा है शायद, somebody from मुश्तबा है, हाजिरा फातिमा है, somebody, ओके, जस्ट लिसन टू मी। दो टॉपिक पढ़ा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पढ़ा है और एक नीति आयोग। ये देखो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो, ये दोनों आंसर्स 5 मार्क्स के हैं, बोथ दीज क्वेश्चंस। परसों आपका जो मार्च और अप्रैल में जो एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स का सेकेंड ईयर, उसमें ये क्वेश्चंस थे आपके, दोनों भी थे, तो प्रोबेबली इस सप्लीमेंट्री में भी आएंगे ये क्वेश्चंस। तो एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि भाई ये दोनों क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। और दूसरी चीज, पहली टॉपिक पढ़ाया मैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट 5 से 6 तरह के, ओके, 5 to 6 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल बोले तो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो हम उसको बोलते हैं, उस चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है आपका, डिस्गाइज्ड। एक डिस्गाइज पढ़ा है, डिस्गाइज का मतलब क्या होता कि भाई एक पर्टिकुलर जॉब है जो उसमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों की जरूरत है 20 लोग काम कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा था आपका सीजनल। सीजनल का मतलब क्या होता पापा, ऑफ सीजन में जॉबलेस हो गए, सीजन आ गया तो जॉब मिल गया, ओके, काम मिल गया, तो हम उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद था फ्रिक्शनल, ओके। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई एक जॉब से दूसरे जॉब को शिफ्ट करने में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप जॉबलेस रहे तो हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद था आपका अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर बोले तो एक आदमी जॉब पे है लेकिन उसके स्किल्स को फुल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, ओके, उसके यूटिलाइज नहीं करने की वजह से उसको हम बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद था आपका टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल बोले तो टेक्नोलॉजी के रिप्लेसमेंट की वजह से अगर कोई आदमी जॉब लूज कर गया, if somebody lost his job due to the replacement of technology या टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की वजह से जॉब चली गई, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये था अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा है मैं, नीति आयोग बोल के, ओके। नीति का फुल फॉर्म होता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो हिंदी का लफ्ज है एक्चुअली है, राइट। इफ यू लुक एट हियर, ये लफ्ज क्या है, हिंदी का लफ्ज है नीति। सो व्हाट डू यू मीन बाय नीति? नीति का मतलब होता है पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो ये जो आयोग है, जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही, ओके, जितने भी पॉलिसीज, वॉट एवर द पॉलिसीज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, इफ दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट और इफ दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग दैट आउट, ओके, तो उन पॉलिसीज के बारे में सोचना, क्रिटिकल इनपुट देना गवर्नमेंट को, स्ट्रैटेजी बनाना, इम्प्लीमेंट करने के लिए पिच करना, ये सब कुछ करने का काम किसका है भाई? नीति आयोग का है, ठीक है। उसके वहां पे फंक्शंस है कि भाई स्टेट और सेंट्रल के डिस्प्यूट्स को कम करना, दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशंस को बाकी रखना, ठीक है। और फिर क्या है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इसका अप्रोच चेंज करे। प्लानिंग कमीशन था पहले एक, ना 1950 से लेके 2014 तक चला वो, लेकिन क्या हुआ बाद में, गवर्नमेंट बदलने के बाद उस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इसको लाए, नीति आयोग बोल के बनाया उसको। 1 जनवरी 2015 से हम उसको स्टार्ट करें, ओके। उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और एक चीज याद रखो इसमें कि चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर है उसके, और जो मेंबर्स है पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स है, और उसके एक वाइस सीईओ है, एक सीईओ है। तो एक बात याद रखो, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी है, तो ये लोग मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे ताकि भाई, और ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ही इसको चला रही, ताकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के प्रोसेस में ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए तो वही ऑर्गेनाइजेशन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चला रहा कि भाई डेवलपमेंटल इनपुट्स के साथ स्ट्रैटेजी बनाना, थिंकिंग करना। थिंक टैंक बोले इसको, इसीलिए क्या बोले,
अगर आप ये एक वर्ड पे गौर करें आपको समझ में आ जाता। थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट का। थिंक टैंक क्या है बोलो? थिंक टैंक। वाई? बिकॉज whatever the government want to think, to plan, to implement, to make strategy, that organization will do on behalf of government. That is the reason it is called as think tank of the government. Okay, still anyone having any doubt can ask. Okay, समझ में आ गया? All the participants, right? Anybody is having any doubt can ask. So Mustafa, I am seeing your chat. Is it clear right now? Yes, sir. Hajira Sayyeda, Hajira. Right now it is clear. Yes, sir. Clear. ओके कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए बाबा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट कैन आस्क। कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। सो नो डाउट। एनीबडी हैविंग एनी मोर डाउट्स? ये दो आंसर्स याद रखो, डेफिनेट आते देखो एग्जाम में। डू रिमेंबर दिस टू क्वेश्चंस। ओके, अर्लियर 3 LAQs आई हैव आस्क्ड। 3 LAQs पढ़ा है, वो भी याद रख लो। फर्स्ट यूनिट का लो प्रोडक्टिव, वो सॉरी क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, एक आंसर वो। 5th यूनिट का आपको ये आंसर पढ़ा है मैं, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर का। और 10th यूनिट में ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ये 3 LAQs पढ़ लीजिए। वो 3 LAQs, ये 2 SAQs पढ़ लीजिए। अभी तक आपके इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स तो कंफर्म हो जाते हैं। इतना तो पढ़ो पहले, इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। I'm ending the session. If anybody is having any doubt can ask. Okay. सर आप जो रिपीट करे नहीं वो एक बार फिर से बोलो बोल रहे। बोलो जी क्या बोल रहे हैं? सर आप जो अभी बोले नहीं वो फिर से रिपीट करो बोल के बोल रहे। देखो 3 LAQs पहले पढ़ाया मैं, वो याद रख लो बाबा। फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। वो आंसर एक डेफिनेटली पढ़ लो। सर राइट ऑन द वर्ड सर। Okay, I'm writing. Just wait for a minute. I will be writing. Unit 1, पेज नंबर 11। अपनी शाइन की मटेरियल में चेक कर लो बेटा ये। ओके, यूनिट 5, पेज नंबर 63। यूनिट 10, पेज नंबर 138। ये 3 आंसर्स है। ये LAQ से बेटा, ये 3 पढ़ लो। ठीक है, आज 2 SAQs पढ़ाया, वो भी लिख देता हूँ बोर्ड पे। यूनिट 3, पेज 41। यूनिट 4, पेज 56। ये 5 आंसर्स है, इतने पढ़ लीजिए पहले। कल फिर इंशाल्लाह क्लास लेता हूँ, कल 2 SAQs पढ़ाता हूँ और। ओके।